Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everybody. Today's topic is chapter 2, preservation of the Holy Quran. Yesterday we finished a part of it, that was the compilation of Quran during the time of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And today we are going to study about compilation of Quran during the era of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu and Hazrat Usman Ghani radiallahu anhu. Okay, who can summarize previous lesson for me? That is the compilation of Quran during the lifetime of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Who can summarize it for me quickly? Safa, आप करेंगे बेटा? Sorry, sir. समरी बता दे मुझे जरा कल के लेसन जो हमने पढ़ा था. Okay, sir. Sir, Quran Pak 3 eras में compile हुआ गया था. First Prophet peace be upon him के time पे, second Hazrat Abu Bakr के time पे, and third Hazrat Usman के time पे. जब Prophet peace be upon him की compilation की बारी थी तो उन्होंने 3 methods इसके लिए suggest किए थे. First one was that he used to recite it in daily prayer so that Muslims can memorize it. Secondly, he used to suggest Muslims to learn it and to teach it to other Muslims. And third one was whenever any revelation revealed, he would write it down on different things like leather, bones, or parchment papers and other things. Would he himself write or would command others to write? He would command others. जो लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जिनका जो companions? Scribes. Scribes और कातिबीन वही. Correct. ठीक है. जी carry on. जी बेटा बताते जाइए. Okay. Sir, जब भी कोई revelation scribers लिखते थे तो Prophet used to ask them to repeat it so that he can verify whether it is correct or not. Right. And the Quran was not revealed in chronological order. It was compiled by Prophet peace be upon him in that order. The first verse that was revealed was Surah Al-Alaq, but when we recite Quran, the first verses of Surah Fatiha, so that proves that it was not revealed in that order. And 20 scribers were appointed, 20 or 40 scribers were appointed to write down the Quran. Right. Scribes. ठीक है. Okay. Anything else? Would you like to add it to it? Anybody else? कोई point आप इसमें add करना चाहेंगे? Sir, he used to recite Quran with Hazrat Jibreel alayhi salam every Ramzan, and in his last Ramzan he recited it twice with Hazrat Jibreel and Hazrat Zaid bin Sabit. Okay. ठीक है. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ठीक है. चलिए ठीक है. That was a very good summary, mashallah. Shabash beta. Very good. Excellent. Everybody clear to you as well? Yes, चलिए. sir. Now let's move on to next question. ठीक है. The next question है वो है, sorry, next topic जो है, that is compilation of the Holy Quran under the rightly guided caliphs. ठीक है. तो अब ये now we are going to move on to the era of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. तो उनके era में compilation of Quran कैसे हुई? Everybody can you come on the camera quickly? जल्दी से. जल्दी से everybody come on camera right away. I can see Alina, rest of you as well. जल्दी से आ जाइए, ठीक है? I can see Aisha, Stila, Anshra as well. Anshra, कहाँ है आप Anshra? Anshra, can you hear me? Hello, Anshra, are you there? सर, जी. अंशरा का मैसेज आया था कि उनके यहाँ लाइट गई हुई तो वो डेटा यूज कर रही हैं, तो मे बी दैट्स व्हाई शी कैन नॉट ओपन हर कैमरा. ओके, ठीक है. चलिए हम कंटिन्यू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम.
Okay, now as you know that during the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Quran was compiled in the manner that its written form was completed. Okay? The written manner, has been compiled, but it has not been compiled in one book form. Rather, it is written on different pieces, whatever was available. That included wood parchments, big bones, and the leather pieces, etc., etc. So it's written on different places. But our Prophet sallallahu alaihi wasallam made sure that Quran has been memorized, has been made memorized to hundreds of people. Quran is written in its actual form. The sequence of the Quran has been mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान नाजिल होना मुकम्मल हो गया. Everybody know that which verses are of the Quran. मतलब इसके अलावा कुरान कुछ भी नहीं है, यही कुरान है. Everybody knows its sequence as well और written form में भी मौजूद. ठीक है. और देखें आप तरावी वगैरह में भी पढ़ा जाता था. अच्छा, अब आ जाते हैं हम सेकंड एरा में, which is the era of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. You know that Hazrat Abu Bakr, he is the first caliph after Prophet sallallahu alaihi wasallam passed away. So when he became caliph, during his era, a very sad incident happened, and that was the Battle of Yamama. In the Battle of Yamama, many Hufaz Muslims got killed. Hufaz, these are the people who have memorized the Quran. During the time of Hazrat Abu Bakr Siddiq, there was a person who claimed to be a prophet. Actually, he claimed during the time of the prophet, but his actual instigation, his fitna, his trouble, it occurred during the time of Hazrat Abu Bakr Siddiq. His name was Musaylama Kazzab, and he claimed to be a prophet. क्या नाम था उसका? सर और भी लोग थे ना, मतलब और भी और भी लोग थे, लेकिन अभी हम वो पढ़ नहीं रहे ना. अभी हम एक स्पेसिफिक शख्स के बारे में बात कर रहे हैं. क्या नाम बताया मैंने आपको उसका? रिपीट कीजिए. मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब. मुसैलमा कज़्ज़ाब. ठीक है, मुसैलमा कज़्ज़ाब. अच्छा, बिन कज़्ज़ाब नहीं, कज़्ज़ाब. बेसिकली कज़्ज़ाब इट्स एन अरबिक वर्ड. कज़्ज़ाब का मतलब होता है बहुत बड़ा झूठा, वेरी बिग लायर. हाँ, सो वी ऐड दिस नेम विद बाय आवरसेल्व्स कि उसने बहुत बड़ा झूठ बोला ना, ये कह के कि मैं अल्लाह का नबी हूं. मासूम. He used to claim that he's a prophet, and sadly he got a big support, like hundreds and thousands of people started following him actually somehow. So Hazrat Abu Bakr Siddiq, he announced jihad against that person that is fighting with the sword to suppress him and to end his trouble and fitna. So many of the companions participated in that battle. So one of the major battles that happened, that is known as Battle of Yamama. Okay, just in that battle, many Muslims they got martyred. In some books, the figure actually reaches 700, and in some it reaches around 860 as well. ठीक है, तो इतने ज्यादा हुफाज जो है वो शहीद हुए. अच्छा, वो तो हो गया. मुस्लिम्स एक्चुअली दे वन दैट बैटल ऑफ मुसैलमा कज़्ज़ाब को मार. जी, कौन कह रहा है? बेटा कुछ पूछ रहे थे? Okay जी, तो in that battle around 700 and according to some narrations 860 huffaz or memorizers of the Quran they got martyred. अच्छा, जब ये हुआ तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु he went to Hazrat Abu Bakr Siddiq and requested him to compile the Quran. उन्होंने उनसे कहा कि हमें चाहिए कि आपको चाहिए कि आप कुरान को कंपाइल करें बुक फॉर्म्स की सूरत में, डिफरेंट सूरतों को आप कंपाइल करें, क्योंकि देखिए अगर इसी तरीके से हुफाज शहीद होते रहे तो कल को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ट्रबल हो सकती है. कल को कोई इस तरह की ट्रबल क्रिएट कर सकता है कि कुरान अपनी एक्चुअल पोजीशन में मौजूद है या नहीं. लाइक आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट अरब्स दे यूज्ड टू रिलाई मोर ऑन मेमोरी देन ऑन राइटिंग. उनके दरमियान कुरान को और डिफरेंट इंफॉर्मेशन को याद ज्यादा किया जाता था. द पावर ऑफ रिटेंशन वाज वेरी स्ट्रांग एज कंपेयर टू राइटिंग. आजकल हम लिखते ज्यादा है ना, तो याद कम करते. तो अरब लोग याद ज्यादा करते थे. हजरत उमर फारूक ये कह रहे हैं कि देखिए अगर इतनी बड़ी तादाद में हुफाज शहीद हो गए तो कल को कुरान की हिफाजत के सिलसिले में कोई मसला हो सकता है. अब ये भी मैंने आपको कल बताया था कि अल्लाह ताला has taken the responsibility of protecting the Quran, so no one will be able to temper it. But this protection, this preservation is going to happen through the people, through the Muslims. Okay, so being Muslims we need to take measures कि कुरान को हम अपने तौर पे पूरी तरह प्रोटेक्ट कर सके. बाकी अल्लाह ताला ने तो करना ही है, वो कभी भी कोई इसको चेंज नहीं. So that's why Hazrat Umar Farooq रज़ियल्लाहु अन्हु he is saying to Hazrat Abu Bakr Siddiq कि हमें चाहिए कि हम कुरान को कंपाइल करें एक बुक फॉर्म में. एक बुक फॉर्म में डिफरेंट उसकी सूरतों को कंपाइल करें, क्योंकि नहीं करेंगे और इसी तरह हुफाज शहीद होते रहे तो कल को हमारे लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है कुरान के प्रेजर्वेशन के सिलसिले. हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने जैसे ही सुना, राइट अवे ही रिजेक्टेड दिस आइडिया. उन्होंने कहा ये हम कैसे कर सकते हैं.
हम वो काम कैसे कर सकते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया? How can we do something which Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam has not done? तो हजरत उमर उनको मजीद समझाते रहे कि देखिए कोई बुरी चीज तो नहीं है ना, दो our prophet has not done it, of course this is a new thing, but this is something which is necessary to do, अगर नहीं करेंगे तो कल को प्रॉब्लम है. So हजरत अबू बकर नहीं माने. Then there was the major scribe of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Zaid bin Sabit. I told you he used to be a major scribe in Medina of Quran Sharif. तो उन्हें बुलाया गया और उनके साथ ये आइडिया डिस्कस किया गया. अच्छा, उन्होंने भी इनकार कर दिया. He said the same thing which Hazrat Abu Bakr said, that why should we compile the Quran? If our Prophet sallallahu alaihi wasallam wanted to compile it in one book form or books, different books or surahs, our Prophet would have done it. But our Prophet didn't do it. So why shall we be doing it? तो उन्होंने भी इसको इनकार कर दिया. लेकिन हजरत उमर फारूक वो उनको समझाते रहे और कंपेनियंस के जरिए भी पैगाम भिजवाते रहे. So Hazrat Abu Bakr Siddiq later on वो खुद कहते थे that Allah subhanahu wa ta'ala opened my heart for this idea and I agreed with it. यानी मुझे समझ में आ गया कि ये क्यों हमारे लिए क्यों जरूरी है और कुरान को कंपाइल करना कोई बुरी चीज नहीं. अगरचे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नहीं किया, लेकिन एक जरूरी चीज है और जरूर ऐसा करना चाहिए. So later on he agreed to. बेटा यहाँ तक बात क्लियर है आपको? Yes sir. ठीक है. सर तो देखिए मैं आपको आपकी पिक्चर अटक गई थी थोड़ी देर के लिए, तो आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी मुझे. अच्छा, तो कहाँ पे मिस हुआ मुझे बता दें, मैं रिपीट कर दूं. सर मैं मतलब जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक मान नहीं रहे थे और हज़रत उमर ने रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि आपसे सबने कभी किया नहीं ऐसे. जी हाँ, तो फिर क्या हुआ कि हजरत उमर ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत जैद बिन साबित को भी, जैद बिन साबित कौन है? ही यूज्ड टू बी मेजर स्क्राइब इन मदीना, जो मदीना मुनव्वरा में वही लिखा करते थे ना कुरान, उनको बुलाया. तो उनके साथ ये आइडिया डिस्कस किया, उन्होंने भी मना कर दिया. लेकिन हजरत उमर दोनों को एम्फसाइज करते रहे, स्ट्रेस करते रहे कि करना चाहिए. तो लेटर ऑन हजरत अबू बकर सिद्दीक ही एग्री टू इट और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मेरा दिल इसके लिए खोल दिया and I agreed and I understood there's something very good and we have to do it. It's like necessary upon us to. ठीक है, तो तक मैंने यही आपको बताया. तो देखिए अब तक आपने क्या समझा? हजरत अबू बकर, हजरत उमर, बैटल ऑफ यमामा हुई मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब के खिलाफ ड्यूरिंग द एरा ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक. दिस बैटल हैपेंड इन 11 हिजरा. ईयर भी याद रख लीजिएगा, 11 हिजरा, तो जिसमें बहुत बड़ी तादाद जो मुसलमानों की कुफ्फार की शहीद हो गई. हजरत उमर हजरत अबू बकर के पास गए, उसको हिफ्ज का आइडिया दिया, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, फिर इसके बाद जो है ये हजरत ज़ैद बिन साबित को बुलाया गया, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया. लेकिन बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक इस पर एग्री कर गए एंड ऑफ कोर्स हजरत ज़ैद बिन साबित इस पर. तो अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया? He made a panel of people who are going to compile the Quran. He made a panel like a commission of the companions, which was headed by Hazrat Zaid bin Sabit रज़ियल्लाहु अन्हु. हजरत ज़ैद बिन साबित को हेड बनाया, उनके साथ और कंपेनियंस दिए, उनको टास्क दिया that you have to compile Quran in one book form. हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी इस काम में इन्वॉल्व थे, साथ में मस्जिद में बैठ गए थे और जिन लोगों को कह दिया गया जिसको कुरान याद है वो आके सुनाते थे. तो अब एक टास्क दे दिया गया कि कुरान को कंपाइल कर. कैसे किया जाएगा? एक ऐलान कर दिया गया, जिस किसी के पास कुरान की कोई आयत लिखी हुई है या कोई आयत याद है वो आकर उसको पेश कर. जिस किसी को भी, किसी भी सहाबी को कहीं भी कोई भी कुरान की आयत याद है वो आकर बताए, और या कुरान उनके पास कहीं लिखा हुआ है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें लिखवाया था तो वो भी लाके पेश कर. Whoever is coming with any Quranic verse, be it verbal or be it written, they have to present 2 witnesses on it. How many witnesses? 2 witnesses. यानी कि भाई अगर कोई सहाबी आते हैं और बताते हैं कि देखिए ये जो आयत है ये मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी थी, उनसे सुनी थी, तो 2 और सहाबी इसकी गवाही दे कि कुरान की वही है. ठीक है, 2 और इसकी विटनेस थे. अच्छा, इसी तरीके से कोई रिटन फॉर्म में लेकर आया तो 2 और कंपेनियन से गवाही दें कि उनके सामने आयत नाजिल हुई थी और उन्हीं के सामने लिखवाई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बात की गवाही दी. तो तब कहीं जाके वर्सेस एक्सेप्टेबल होंगे इनसे. अगर ये नहीं करते तो फिर वर्सेस उनसे एक्सेप्टेबल नहीं होंगे. गेटिंग एवरीबॉडी? Yes sir. ठीक है, तो अब देखिए इस तरीके से पूरे कुरान को कंपाइल किया जाने लगा. अच्छा, जो पेज मैंने आपके साथ शेयर किया है जरा इसका लास्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे. Somebody can you read it please? तो जूम कर देता हूँ आपके लिए.
जी बेटा, this point, last one. To bring together every part of the Holy Quran on the basis of all the written material which was scattered and with the help of Huffaz. अब यानी ये जो पैनल उन्होंने बनाया था उसके पॉइंट्स ये थे. As you can see, the terms of reference were as follows. एक तो ये हो गया कि जिस किसी के पास लिखा हुआ कहीं भी है वो लेकर आए. ठीक है. अच्छा जी बेटा, पॉइंट नंबर 2 पढ़िएगा. To be careful in accepting only those written portions of the Holy Quran which were found authentic and reliable. To accept only that material of which at least 2 written copies were available. To obtain testimony of at least 2 witnesses to the effect that whatever was submitted to the commission was written in front of the Holy Prophet ﷺ, and whichever portions of the Holy Quran were recited before the commission were exactly the same as heard from the Holy Prophet ﷺ, and also recited in the presence of Holy Prophet ﷺ. To compare the written material with the last recitation of Quran by the Holy Prophet ﷺ. ठीक है, सही. तो देखिए ये इसके कुछ पॉइंट्स है जिसकी समरी ये बनती है कि जिस किसी को कुरान याद है, जिसके पास लिखा हुआ है, वो उसको लेकर आए. ठीक है. जब वो कुरान को रिसाइट करेंगे तो वहाँ पे जो हुफाज मौजूद है, जिनका पैनल बनाया गया, तो उसको एनालाइज करेंगे एंड दे विल मेक श्योर कि जो कुरान आ रहा है वो करेक्टली आ रहा है. ठीक है. क्योंकि देखिए ना, एक बहुत बड़ा पैनल है, एक शख्स मिस्टेक करेगा, 2 करेंगे, सबके सब तो नहीं करेंगे. ठीक है. लाइक आई टोल्ड यू, उनकी मेमोरी बहुत जबरदस्त वर्क करती है. और जो भी कुरान लेकर आ रहा है, दे हैव टू ब्रिंग 2 विटनेसेस ऑन, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो चाहे वर्बल. तो इस तरीके से पूरे कुरान को कंपाइल किया. जब इस लगा पूरा पैनल जो है मस्जिद नबी में बैठ गया, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी वहां पर थे, तो यूं कुरान को कंपाइल किया. तो फिर क्या हुआ कि हर सूरत को जमा कर दिया गया. ईच सूरा वाज कंपाइल्ड इन अ बुकलेट फॉर्म. तो कुरान अब भी एक बुक फॉर्म में नहीं है, इट्स जस्ट दैट डिफरेंट सूरास और कंपाइल्ड. तो और ये जो डिफरेंट सूरास की बुकलेट्स का जो पूरा कॉम्बिनेशन है, इसको नाम दिया गया मुसहफ का. क्या कहते हैं इसे? मुसहफ. मुसहफ. ठीक है. As you can see over here, in response to the call of Hazrat Umar radiallahu anh, those companions who served as scribes submitted all the written portions of the Holy Quran before the commission. Then Hazrat Zaid bin Sabit radiallahu anhu compiled the Holy Quran into a book form. This was called a mushaf. ठीक है. इसे मुशाफ़े हफ्सा कहते हैं ना? इसको मुसहफ हफ्सा कहते हैं. मुसहफ सहूफ़ हफ्सा भी. जी जी, सुहूफ हफ्सा या मुसहफ हफ्सा बहुत करें. ठीक है. अब देखिए नीचे क्या लिखा है. Hazrat Zaid handed the compilation to Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu after Hazrat Abu Bakr's demise, meaning after his passing away. It was passed on to Hazrat Umar Farooq radiallahu anhu and then to Hazrat Hafsa, the mother of the faithful. Hazrat Hafsa, who is the wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or a mother, and daughter of Hazrat Umar Farooq radiallahu anhu. ठीक है. For everybody. तो जो कंपाइलेशन हज़रत ज़ैद बिन साबित ने पूरी बनाई, जब वो सबकी तरफ से कंफर्म हो गई, लाइक इट हैज बीन फाइनलाइज्ड. ठीक है. ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास रही. फिर जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने हज़रत उमर फारूक को दे दिया, और जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपनी बेटी हज़रत हफ्सा को दे दिया, मदर ऑफ द बिलीवर्स. और फिर जब हज़रत उस्मान के ज़माने में फिर से कंपाइलेशन होगी कुरान की एक बुक फॉर्म में, तो इसी मुसहफ को मंगवाया जाएगा और इसी को टैली किया जाएगा. फॉर एवरीबॉडी. ठीक है. Yes, sir. So that's the summary of compilation of Quran during the era of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. ठीक है. तो इस तरीके से कुरान हज़रत अबू बकर के ज़माने में एक बुक फॉर्म में पूरा जमा है. अच्छा, अभी जो मैंने बेटा पे जो दोनों पेजेस है ना शेयर किए हुए आपके साथ, ठीक है, इसको जरा पढ़ लीजिए अपने पास. ठीक है. This one and the next one. ठीक है. तो जूम इन कर देता हूँ थोड़ा. पेज टर्न करके मुझे बता दीजिएगा, इसको आप रिवाइज कीजिए जल्दी से. ठीक है. मेक श्योर एवरीथिंग इज क्लियर, फिर हम आगे बढ़ें.
डन। जी ये भी पढ़। Done, sir. जी बेटा, any questions? Anything not clear? No, sir. Anshara को सब ठीक है। Shall we move on? ठीक है, चलिए। Moving on to next topic, that is compilation of Quran during the caliphate of Hazrat Usman रदियल्लाहु अन्हु। ठीक है। अच्छा, अब हजरत उस्मान के जमाने में कंपाइलेशन एक बुक फॉर्म में क्यों जरूरत पड़ी है, क्या हुआ, इसको अंदर देखते हैं। देखिए याद रखिएगा, हजरत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के जमाने में क्या हुआ, एक तो कुरान को एक बुक फॉर्म में जमा कर दिया। ठीक है। हजरत अबू बकर के जमाने में जो डिफरेंट सूरतें अलग अलग बुकलेट्स की सूरत में जमा हुई है, इस सब को एक बुक फॉर्म में जमा कर दिया गया। एक तो ये टास्क हुआ। दूसरा ये हुआ दैट द कुरान व्हिच वाज रिवील्ड ऑन सेवरल डायलेक्ट्स, उसको एक डायलेक्ट पे जमा कर दिया गया, एंड दैट डायलेक्ट और एक्सेंट वाज ऑफ कुरैश। ठीक है। इस तरह अरबिक के जो डिफरेंट रिटन फॉर्मेट्स थे, उसको भी, उसमें भी कुरैश का जो रिटन फॉर्मेट था उसका इंतखाब कर दिया। सो इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग एंड इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, जो मैन्युस्क्रिप्ट का जो फॉर्म होता है वो, द मैनर ऑफ राइटिंग और द मैनर ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ द डायलेक्ट, इसमें कुरैश के जो एक्सेंट था और उनका जो वे ऑफ राइटिंग था उसका इंतखाब कर लिया गया। इसी पे कुरान को पढ़ा जाएगा और इसी पे कुरान को लिखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये सब कैसे हुआ, इससे पहले आप जरा एक बैकग्राउंड समझिएगा। ठीक है। बैकग्राउंड क्या है, वो बैकग्राउंड ये है कि सबसे पहले आप याद रखिएगा दैट रिमेंबर कुरान इट वाज रिवील्ड ऑन सेवरल डायलेक्ट्स, और एक्चुअली 7 डायलेक्ट्स। जैसे मेंशन इन हदीस, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that Quran was revealed on 7 dialects. Quran was revealed on 7 dialects. अच्छा, वो 7 डायलेक्ट कौन कौन से, मैं उनके नाम यहाँ पे चैट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। Seven dialects of Quran. Which Quran was revealed. First is Quraysh. Second is Tai. Third is Hawazin. Number 4 is Ahl Yaman. Number 5 Saqif. Number 6 is Huzan. And number 7 is Banu Tamim. आयशा, आपके बैकग्राउंड में गोश्त का काम हो रहा है, लकड़ी का काम हो रहा है? तो मेरे बैकग्राउंड में हाँ सिर्फ एक्चुअली घर में थोड़ा काम हो रहा है। हाँ, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं आपको माइक म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। When you have done writing, when you're done with the writing, let me know. Sir, I've written. Sir, I've Okay. also written. ठीक है, तो देखिए बेटा, these are the 7 dialects of Quran. ठीक है। तो पहला है इस पे कुरैश, सेकंड इज तोई, तोई विद तो एंड या। ठीक है, तो मेरे पास अरबिक राइटिंग का भी ऑप्शन नहीं है, तो आप इसे लिख लीजिए तो एंड या, तोई। ठीक है। थर्ड इज हवाजिन, हवाजिन विद द थिक हा, हवाजिन। अहले यमन, दैट इज यमनाइट, द पीपल ऑफ यमन। फिफ्थ इज सकीफ, सकीफ एक कबीले का नाम था अरब रीजन में। हुजैल, इट्स आल्सो नेम ऑफ वन ऑफ द ट्राइब्स। बनु तमीम, दिस इज तमीम और बनु तमीम, इट्स आल्सो नेम ऑफ वन ऑफ द ट्राइब्स ओवर देयर। तो देखें जिस तरीके से हर लैंग्वेज के डिफरेंट एक्सेंट्स और डायलेक्ट्स होते हैं ना। फॉर एग्जांपल देखिए, उर्दू के डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं, इजंट इट? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। बात सुन रहे हो मेरी? बेटा रिस्पॉन्ड कीजिएगा, माइक ऑन कर दें। इस्तिला, अंशरा, आयशा इज़ वन। Yes, sir.
हाँ जी बेटा, मेरी बात पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए हर जितने भी एक्सेंट्स होते हैं, कोई भी लैंग्वेज होती है उसमें डिफरेंट डायलेक्ट्स होता है ना। फॉर एग्जांपल देखिए उर्दू है, तो कराची के लोग डिफरेंट स्टाइल की बोलते हैं, लाहौर के लोग उनका एक्सेंट अलग है, बलूचिस्तान चले जाएंगे उनका अलग है, पेशावर वालों का अलग है, नोट किया आपने Yes, कभी, sir. है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर आप पंजाब चले जाएं, तो अच्छा आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ एनीवन, ठीक है, जस्ट टेलिंग यू फैक्ट। जब वहां पर अस्पताल को कहेंगे अस्पताल, अस्पताल, ठीक है, स्कूल को कहते हैं स्कूल, तो उनके अंदर ना वो इस वाला जो साउंड होता है स्कूल या अस्पताल, इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू प्रोनाउंस देम, तो क्या कहते हैं स्कूल, अस्पताल, ठीक है। अच्छा जैसे हम पराठे को पराठा कहते हैं कराची में, ठीक है, अगर लाहौर की तरफ जाएंगे तो कहते हैं पराठा, ठीक है, पराठा। अच्छा हम अंडा कहते हैं, वापस को अंडे की भी कहते हैं, यार अंडे ले लो अंडे, ठीक है। अच्छा पेशावर में चले जाए वहां तो समटाइम्स मुझे मोहल्ले से चेंज हो जाता है, ठीक है, तो आएगा या आएगी लाइक दैट पूरे चेंज हो जाते हैं। इट्स जस्ट दैट दीज आर डिफरेंट एक्सेंट्स, ठीक है, जैसे इंग्लिश के डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं, ब्रिटिश एक्सेंट इज डिफरेंट, अमेरिकन एक्सेंट इज क्वाइट डिफरेंट, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ऑल टुगेदर कंप्लीटली डिफरेंट, कैनेडियन एक्सेंट आपको अलग लगेगी। If you go to UK, within UK there are several accents. People living in main London, उनका अलग होगा, as compared to people living in like Scotland. It's very difficult to understand. I used to have some students from Scotland. उनको online पढ़ाता था. It was just so difficult to understand them. I would sometimes even need to ask them like 2-3 times, to repeat. Then I was able to understand because it's completely different. आप experience करना हो, आप YouTube पे जाकर जरा सुनिएगा, आपको समझ, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से हम अगर ये जबान ले लें अरबिक, तो अरबिक उस इवन एट दैट टाइम इट यूज्ड टू बी वाइडली स्पोकन, ठीक है। पूरा जो अरब रीजन है जिसमें यमन भी आता है, शाम भी आता है, सीरिया आता है, खालिस्तान, ये सब के सब में अरबिक ही बोली जाती थी। तो हर इलाके की का जो है ना एक्सेंट काफी अलग, ठीक है, तो अलग अलग एक्सेंट हुआ करते थे। नाउ दिस इज द मिरेकल ऑफ आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट इज स्पेशल ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला that our prophet used to teach Quran according to the accent of that particular people who are coming from that tribe. For example देखिए अगर कुरैश के लोग हैं तो हुजूर उनको कुरैश के एक्सेंट और डायलेक्ट में कुरान सिखाते थे, जो तई के लोग हैं उनको उनके एक्सेंट में सिखाते थे, हवाजिन के लोगों को उनके डायलेक्ट में सिखाते थे, हुजैल का कोई शख्स आएगा तो उसको उसके लहजे में सिखाएंगे, सकीफ का कोई शख्स आएगा तो उसको उसके बोलने के तरीके के मुताबिक सिखाएंगे। That's amazing, isn't it? Yes. है ना भाई, मुझे इंग्लिश आती है तो मैं, और फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में कैनेडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश स्टूडेंट्स हैं, तो मैं हर एक से शायद उनके एक्सेंट के मुताबिक उनको नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। इसलिए प्रॉफिट दिस वाज मिरेकल कि लोग जिस भी कबीले से आते थे, जो 7 कबीले हैं, इन्हीं के एक्सेंट पे हुजूर उनको कुरान सिखाया करते थे, जो भी उनके लिए इजी हुआ करता था। तो व्हाई देयर वर 7 डायलेक्ट्स, सो दैट इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ इजीनेस एंड पीस फॉर पीपल, लोगों के लिए सीखना आसान हो, ठीक है। तो अगर इनिशियली ही कुरैश का एक्सेंट मुकर्रर कर दिया जाता, सो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू लर्न द रेसिटेशन ऑफ द कुरान, एंड then people may face difficulty in the preservation of the Quran, okay. So Can during you the time of repeat the, again? I'm saying that why Allah Ta'ala revealed Quran 7 dialects. Why? What's the reason behind? Reason is so that it is easier for the people to learn and memorize Quran in their own accent, whatever is easier for them, in whichever manner Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has taught them. अगर उसी वक्त लोगों को ये कहा जाता है कि कुरैश के एक्सेंट को फॉलो करो, तो मे बी इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर देम टू लर्न एंड मेमोराइज कुरान, तो मे बी प्रिजर्वेशन ऑफ कुरान में शायद डिफिकल्टी होती, ठीक है। तो बेसिकली इट्स अ कंफर्ट, इट्स वाज एन ईज फॉर द पीपल कि कुरान को 7 डायलेक्ट पर अल्लाह ने नाजिल किया, द प्रॉफिट वुड टीच द पीपल रिस्पेक्टिवली, अकॉर्डिंग टू दीस 7 डायलेक्ट्स। फॉर एवरीबॉडी क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया बेटा, देखिए 7 डायलेक्ट। अच्छा तो देखिए बोलने में कुछ कुछ फर्क हो जाया करता था, लेकिन मीनिंग सेम रहते थे। समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, मीनिंग्स वुड नेवर चेंज, नेवर चेंज। बोलने में एक्सेंट में फर्क होता है, लेकिन उसके मीनिंग में कोई फर्क नहीं होता। और फॉर एग्जांपल देखिए एक वर्ड है इंग्लिश का शेड्यूल, आपने इसको सुना होगा, इसको स्केड्यूल भी बाद लोग कहते हैं, स्केड्यूल एंड शेड्यूल, राइट, बोथ आर करेक्ट, लेकिन मीनिंग वही सेम रहेगा। इट मींस समथिंग दैट यू हैव प्लान्ड और जिसको फॉलो करना है, स्केड्यूल, जिसको भी शेड्यूल कहते हैं। तो सिमिलरली जितने भी डायलेक्ट्स की सूरत में जो प्रोनाउंसिएशन में चेंजेस आ रही हैं, it's not going to affect the meanings at all. Meanings are going to remain same. So that's why it wasn't a source of
difference of opinion at that time. ठीक है? अच्छा, अब इस तरीके से आप ये भी याद रखिएगा बेटा कि written format में भी कुछ फर्क हो जाया करता था, जैसे spellings में फर्क हो. Again, I will give you example of British American English. I think American English में color को लिखा जाता है COLOR और UR, है ना? और I think दूसरे British उसमें लिखा जाता है COLOR. Yes, miss. देखिए दोनों स्पेलिंग्स है ना, कलर एंड कलर, COLOR COLOUR, राइट? तो देखिए दोनों तरह की स्पेलिंग्स हैं, बोथ आर करेक्ट, इट्स जस्ट दैट वन इज अमेरिकन अदर इज द ब्रिटिश. ठीक है, तो ऐसे होता है. तो इंग्लिश में इस तरह के बहुत सारी स्पेलिंग में आपको फर्क मिलता है. ऐसे ही जब कुरान 7 डायरेक्ट्स में नाजिल हुआ तो उसका जो रिटन फॉर्मेट था उसमें, तो मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ. देखिए मेरा नाम है रऊफ, ठीक है, इसको अरबिक में कैसे लिखेंगे बताइएगा जल्दी से, कैसे लिखेंगे इसे? स्पेलिंग बता दो मुझे जल्दी से, कैसे लिखेंगे? सर रे अलिफ वाव. भाई रे वाव, वाव विद हमजा अपॉन इट एंड फा, रऊफ. ठीक है, ऐसे लिखेंगे. रॉ अरबिक में रॉ लिखेंगे, वाव लिखेंगे, आवाज वाव. वापस कट हो गई थी. अच्छा अब आ रही है मेरी आवाज सबको? सर अब आ रही है, आप कुछ बता रहे हैं? बेटा बाकी सबको आ रही है मेरी आवाज? जी सर. आ रही है, आयशा आ रही है, सबको आवाज आ रही है? ठीक सर है. एक्चुअली मेरी लाइट नहीं है तो बार बार नेट वो. अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं. ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से कुरान 7 डायलेक्ट्स में नाजिल हुआ तो पढ़ने में कुछ फर्क हो जाता था एक्सेंट में, लेकिन मीनिंग सेम रहती थी, मीनिंग वुडंट चेंज. जैसे इंग्लिश में कलर और कलर, COLOR COLOUR, स्पेलिंग्स का फर्क है, मीनिंग सेम रहता है. ऐसे रिटन फॉर्म यानी स्पेलिंग्स में भी अरबिक में भी कुछ फर्क आता था. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ अपने नाम रऊफ. तो मेरा नाम अरबिक में लिखा जाता है रॉ, वाव, वाव के ऊपर हमजा एंड फा, रऊफ. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू वन ऑफ दीज डायलेक्ट्स जब ये नाम रऊफ लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? विद 2 वाव्स. हाउ मेनी? 2. रॉ, then वाव with the hamza, and after that another वाव and then fa, रऊफ. getting everybody? यस सर. ठीक है, हाँ जी. तो बस ये एक फर्क होगा रिटर्न, लेकिन देखिए मीनिंग्स में कोई फर्क नहीं पड़ा. तो कुरान में जहाँ अल्लाह ताला का नाम आएगा रऊफुर रहीम, तो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ कहीं नाम आएगा अल्लाह के नामों में से भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से भी रऊफुर रहीम, तो फिर उसका मीनिंग सेम ही रहेगा, मीनिंग जरूर नहीं कुछ. तो जो 7 डायलेक्ट्स है इनमें एक्सेंट में भी फर्क आ जाता था और डायलेक्ट में भी फर्क आता था. ठीक है, लेकिन अब हुआ ये कि जो इस्लाम फैलते फैलते और शहरों में पहुंचा तो जिन लोगों को इन 7 डायलेक्ट्स के बारे में पता नहीं होता था, उनको स्पेलिंग का फर्क नहीं पता होता था, तो वहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना शुरू हो गया. पीपल स्टार्टेड आर्ग्यूइंग इन डिफरेंट मैटर्स. अब फॉर एग्जांपल एक इमाम है, उन्होंने एक पर्टिकुलर मैनर में कुरान सीखा और उस तरीके से रिसाइट कर रहे हैं. अब उसके पीछे जो नमाज पढ़ने वाले वो किसी और मुल्क, किसी और शहर के आए हुए और उन्होंने कुरान की रेसिटेशन स्लाइटली डिफरेंट सीखी है अकॉर्डिंग टू अनदर एक्सेंट और डायलेक्ट. ठीक है, तो जब वो इमाम को कुरान पढ़ता हुआ सुन रहे हैं, सो दे विल स्टार्ट थिंकिंग कि यार ये तो गलत पढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली सही पढ़ रहे हैं, वो भी सही पढ़ रहे हैं और ये जो इन्होंने जैसे सीखा वो भी सही है. बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज समटाइम्स देयर वुड बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द पीपल. ठीक है, तो फिर जो है इख्तिलाफात बढ़ने लगे. तो उसके नतीजे में हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू कंपाइल कुरान और वी आर गोना टेल पीपल टू रीड कुरान अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ कुरैश. ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर डायलेक्ट, एंड द रिटन फॉर्मेट विल बी फॉलोड, दैट विल बी फॉलोड विल बी ऑफ कुरैश. बेटा ये इंट्रोडक्शन याद रखिएगा जो मैंने आपको डायलेक्ट्स का एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, तो कल हम इंशाल्लाह यहीं से उसको कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे हज़रत उस्मान के जमाने में कुरान कैसे कंपाइल हुआ इन द नेक्स्ट लेसन. ठीक है एवरीबॉडी, करेक्ट? ओके सर. अच्छा, तो अभी आप जरा ब्रेक ले लीजिए 5-10 मिनट का. ठीक है, जॉइन मी अगेन एट 11 इंशाल्लाह. ठीक है, ओवन के साथ. देन वी कंटिन्यू विद द कुरानिक क्लास. सर लास्ट टाइम आपकी तो लास्ट क्लास है ना? नहीं लास्ट नहीं बेटा, वो चेंज हो गया शेड्यूल. अभी सेकंड हुआ करेगी इस्लामियत की. तो फर्स्ट 2 यूनिट जो है इस्लामियत के वो आपके जो है ना फ्राइडे के इस्लामियत के वक्त. ठीक है, क्लियर? यस. ओके जी, सी यू. अल्लाह हाफिज. अल्लाह ठीक है. हाफिज़.